everyone, welcome back to my YouTube channel Nursing Excellence. In the today's video, we will discuss about a new condition of medical surgical nursing, that is Guillain-Barré syndrome. It is a continuation video of autoimmune disorders of nervous system in which we have already discussed about myasthenia gravis and multiple sclerosis. अगर आपने ये वीडियोस अभी तक नहीं देखी है, so please check it out. Link is in the description box. So before moving to the topic, I would like to request you to please like, subscribe and share to my channel, as it means a lot to me and it provides motivation to make new videos like this. So let's get started. Firstly, we will discuss about the introduction of Guillain-Barré syndrome. Guillain-Barré syndrome, in short, we can write GBS. GBS stands for Guillain-Barré syndrome. GBS or Guillain-Barré syndrome is also known as acute idiopathic polyneuritis. Acute idiopathic polyneuritis means, अगर हम अलग अलग करके देखेंगे तो acute means for a shorter duration of period but with the intense degree of symptoms, right? जो symptoms होंगे उसकी जो intensity होगी that will be severe. Idiopathic means जो suddenly arise हो जाए and without any known cause कि symptoms हो रहे हैं but they don't know why it is occurring, right? Without any known cause. Polyneuritis is a condition or is a problematic situation where there is damage in the peripheral nerves. Okay, so now GBS, what we can say? GBS is an autoimmune attack on peripheral nerve myelin. जो हमारी peripheral nerves हैं उसमें जो myelin sheath है वहां पे अटैक करने लग रहा है कौन? हमारा इम्यून सिस्टम. Which causes, अब पेरिफेरल नर्व्स में जो पेरिफेरल माइलिन है उस पर अटैक करेगा तो उसकी वजह से क्या सिम्टम्स होंगे? Causing acute rapid segmental demyelination of peripheral cranial nerves. जिसकी वजह से क्या हो रहा है? बहुत शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ पीरियड में बहुत ज्यादा सेगमेंटल demyelination. Demyelination is the process of damaging to the myelin sheath. D means damage और माइलिनेशन मतलब माइलिनेशन की जो प्रोसेस है, राइट, ऑफ द पेरिफेरल एंड क्रेनियल नर्व्स. पेरिफेरल और क्रेनियल नर्व्स की माइलिन शीट को डैमेज करने लगता है. प्रोड्यूसिंग असेंडिंग वीकनेस, जिसकी वजह से क्या होगा? क्या सिम्टम्स शो होंगे? असेंडिंग वीकनेस. असेंडिंग मींस क्या होता है? बढ़ता हुआ क्रम, राइट, नीचे से ऊपर की तरफ. तो उसी तरीके से हमारे जो पेशेंट की बॉडी में सिम्टम्स होंगे दैट विल बी फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी. नीचे से ऊपर की तरफ सिम्टम्स अराइज होंगे. विद dyskinesia, these are the medical terminology. Dyskinesia means inability to produce voluntary movement. Voluntary movement मतलब जो हम लोग अपनी इच्छा से अपने कमांड के बेसिस पे मूवमेंट कर सकते हैं. बेसिकली जो हमारे स्केलेटल मसल होते हैं वो हमारे वॉलेंट्री मसल्स कहलाते हैं. Paresthesia, that is the sensation of numbness and tingling and pin needles, and hyporeflexia. What is hypo? Hypo means decreased. Reflexia means reflex. ठीक है? It is the condition where muscles are less responsive to the stimuli. This one is your neuron. Neuron में ये आपका cell body है. This one is axon, and these are your terminal and bulbs. तो ये पूरे एक्सॉन को कवर कर रहा है. दिस इज योर माइलिन शीट. तो हमारी जो पेरिफेरल नर्व्स हैं उसमें जो माइलिन शीट है उसमें डैमेज हो जाता है इस कंडीशन में. सो नाउ कमिंग टू द कॉजेस. द एग्जैक्ट कॉज ऑफ Guillain-Barré syndrome is not known, but researches or studies shows that various microorganisms are there which can cause Guillain-Barré syndrome. Basically, Campylobacter jejuni, bacterial microorganism which is present in 20 to 50% of the cases of GBS. The other microorganisms which can cause GBS is cytomegalovirus, Epstein-Barr virus, Mycoplasma pneumonia, Haemophilus influenza and HIV. HIV is human immunodeficiency virus. Most common microorganisms that is responsible for developing GBS. These are the most common microorganisms which are the reason to develop the GBS. So next are the types of Guillain-Barré syndrome. There are several types of Guillain-Barré syndrome, but we will discuss on the important ones, right? So here in the types, the first type is AIDP, acute inflammatory demyelinating neuropathy. It is the primary type and it is very well known type.
ठीक है, सब जो देखा जाता है, कॉमनली देखा जाता है इज AID। एंड इट इज ऑल्सो नोन एज असेंडिंग GBS। हम इसे असेंडिंग GBS भी बोल सकते हैं। व्हाई? बिकॉज हियर वीकनेस स्टार्ट्स इन दी लोअर एक्सट्रीमिटी। जो हमारी मसल वीकनेस स्टार्ट हो रही है वो कहां से स्टार्ट होगी? लोअर एक्सट्रीमिटी से, एंड इट विल प्रोग्रेस टू दी अपरवर्ड। ठीक है, अपवर्ड प्रोग्रेस होगी एंड विद अ पोटेंशियल रिस्क फॉर द रेस्पिरेटरी फेलियर, बिकॉज इन द असेंडिंग वे इट कैन आल्सो इफेक्ट द इंटरकॉस्टल मसल, इसलिए हमारे रेस्पिरेटरी फेलियर होने का भी चांस रहता है। द सेकंड टाइप इज प्योरली मोटर, राइट? सो हियर the weakness will be only in the muscles but with no effect on the sensation। but ऐसा नहीं है कि उसमें sensory कुछ effect आ रहा है, sensation normal होगा but सिर्फ motor weakness होगी। second type। the third type is also known as descending GBS। descending GBS means घटते हुए क्रम में, यानी ऊपर से नीचे की तरफ। more difficult to diagnose and it is very more difficult to diagnose which affect head and neck muscle। जिसमें ज्यादातर क्या करता है, इसे डिसेंडिंग GBS बोलते हैं एंड ये किसको इफेक्ट करता है? ज्यादातर हेड और नेक मसल्स को इफेक्ट करता है। द नेक्स्ट टाइप व्हिच इज वेरी रेयर टाइप इज मिलर फिशर वेरिएंट एंड इट इज प्रेजेंट विद द सिम्पटम्स लाइक एटेक्सिया, ऑप्थेल्मोप्लेजिया एंड एरिफ्लेक्सिया। नाउ दीज आर द मेडिकल टर्मिनोलॉजी। सो व्हाट इज एटेक्सिया? एटेक्सिया इज इम्पेयर्ड बैलेंस और इम्पेयर्ड कोऑर्डिनेशन। एरिफ्लेक्सिया मतलब ए मींस क्या होता है? इम्पेयर्ड या फिर ऑल्टर्ड। जिसके आगे ए लग जाएगा इसका मतलब ही या तो इम्पेयर हो गया है या तो ऑल्टर हो गया, चेंज हो गया। रिफ्लेक्सिया मींस इनएबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? इसकी जो रिस्पॉन्ड करने की क्षमता है, जो भी स्टिमुलस है, मान लो जो भी बाहर से एक्सटर्नल स्टिमुलस का मतलब क्या है? कुछ भी बाहर से आपको फील हो रहा है आपके सेंसेस के थ्रू, ठीक है, वो आपका स्टिमुलस है। आपकी आईज देख पा रही है तो देखना इज योर स्टिमुलस। ठीक है, आपके आगे ब्लैक बोर्ड है एंड टीचर है, आई एम योर स्टिमुलस। ठीक है, सो अपने जो स्टिमुलस है उसके लिए रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता है, तो दैट इज एरिफ्लेक्सिया। रिफ्लेक्स नहीं होगा उसमें। एंड द ऑप्थेल्मोप्लेजिया। ऑप्थेल्मोप्लेजिया मींस ऑप्थेल्म इज रिलेटेड टू आईज, जैसे आपने सुना होगा ऑप्थेल्मोलॉजी मींस स्टडी ऑफ ऑप्थेल्मिक डिपार्टमेंट, मतलब आईज डिपार्टमेंट, आईज के लिए रिगार्डिंग। ऑप्थेल्मोप्लेजिया, प्लेजिया मतलब क्या होता है? जिस वर्ड के भी पीछे प्लेजिया लगा होगा दैट इज योर वीकनेस या फिर पैरालिसिस। ठीक है, ऑप्थेल्मोप्लेजिया इज पैरालिसिस और वीकनेस ऑफ द आई मसल, मतलब जो हमारी आई मसल है उसमें वीकनेस हो जाना या फिर पैरालिसिस होना। सो दिस इज ऑल अबाउट गुलेन-बेरी सिंड्रोम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और अगर आपको कुछ नई कंडीशन पढ़ना है या फिर आप कोई नई सजेशंस है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।